ہمارے نادان لوگ ہیں کہنے لگے کہ یہ انگریزوں کو تو چاند گرہن اور سورج گرہن کا کچھ نہیں ہوتا. آپ اٹھائیں تو صحیح، انہوں نے کتنی کتابیں لکھی اس پہ، اور کتنی احتیاطیں لکھی ہیں، اور کتنی احتیاطیں کی ہیں اس کے اوپر، کتنی احتیاطیں لکھی ہیں اور کتنی احتیاطیں کی ہیں. حتیٰ کہ حاملہ عورت کے لیے سورج گرہن اور چاند گرہن کی احتیاطیں اس عورت کے لیے جس کے ناپاکی کے دن ہوں، اس کے لیے کیا احتیاطیں ہیں. اس مرد کے لیے یا اس جوان کے لیے جس کی ابھی مونچھیں داڑھی نکل رہی ہے، اس میں کیا احتیاطیں کرنی ہیں. اس بوڑھے کے لیے جس کی زندگی بڑھاپے میں چلی گئی ہو، اس کو کیا احتیاطیں کرنی ہیں. حتیٰ کہ سونے والے کے لیے کیا احتیاطیں، جاگنے والے کے لیے کیا تدبیریں، یہ ساری کی ساری سائنس نے لکھی ہیں. ورنہ یاد رکھنا، اب لفظ سنیے گا ایک اللہ کے ولی کی، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے الفاظ سنیے گا. فرمایا یاد رکھنا، اگر تم نے سورج گرہن میں غفلت کی، کیا لفظ فرمایا، اگر تم نے سورج گرہن میں غفلت کی تو اللہ پاک تمہاری اور تمہاری تمام قوم پہ ایسے ایسے عذاب بھیجے گا جن کو چنتے چنتے تم بوڑھے ہو جاؤ گے. اور ایک روایت یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک سال میں آپ نے یہ فرمایا، اللہ جل شانہ کی طرف سے ایسی اوپر سے بلائیں ٹل آ رہی ہیں، ایسے جیسے کہ تسبیح کے دانے گرتے ہیں، تسبیح ٹوٹتی ہے اور تم ان کو چنتے چنتے بوڑھے ہو جاؤ گے. اور لوگ لگ گئے اعمال میں، لگ گئے کہ نظام ہے، بڑی بڑی ہستیاں اس کو لے کے چلی ہیں. چونکہ امت میں عمومی یہ چیز ختم ہو گئی ہے، ہمیں ہر طرف سے آگاہی مل رہی ہے ہر چیز کی. اس چیز کی آگاہی نہیں ملی، اطلاع نہیں ملی کہ سورج گرہن میں میرے حضور کا عمل کیا تھا، حضور کے ماننے والے، کملی والے کے ماننے والوں کا عمل کیا تھا، ان کی زندگی میں کیا ہوتا تھا اور کیسے ہوتا تھا. قلعہ معلیٰ، لال قلعہ کو قلعہ معلیٰ کہتے تھے، لال قلعہ میں باقاعدہ اس کا اہتمام ہوتا تھا. ایک عمل ہے جس کو حروف صوامت کہتے ہیں. قرآن پاک کے 29 حروف عربی کے قرآن کے، ان میں 13 حروف وہ ہیں جن پہ نقطہ نہیں ہے. اس پہ ایک عمل ہوتا ہے، سورج گرہن کے دوران ایک عمل ہوتا ہے جس کو 543 دفعہ پڑھا جاتا ہے. 4543 543 بار پڑھا جاتا ہے، اول آخر 3 دفعہ درود شریف. حروف صوامت 13 حروف ہیں، ان کو اگر ملایا جائے، 13 حروف کو اگر ملایا جائے، ان 13 حروف کو، تو وہ 13 حروف بنتے ہیں احدر سستا کلمو. الف، ہا، دال، را، سین، صاد، طا، عین، سس، تا، کل، کاف، لام، میم، واو، ہا. بس یہ کتنے حروف بنے؟ 13 حروف. یہ 13 حروف بنے، اور ان 13 حروف کا پورا نظام ہے. جو بندہ سورج گرہن کے دوران پاک صاف کپڑے پہنے، نئے پہننا ضروری نہیں، بس صاف ستھرے پاک صاف کپڑے پہننے، ایک شرط. دوسری شرط سن لیں، پاک ہو، باوضو ہو، اور اس دوران 543 مرتبہ احدر سستا کلمو. یہ ایک دفعہ بنا، یہ 543 دفعہ اگر بندہ پڑھ لے تو اس کا عامل بن جاتا ہے حروف صوامت کا. اور حروف صوامت 13 چیزوں کے لیے، 13 مقاصد کے لیے صدیوں سے عزم ہوتا ہے. جب سے قرآن آیا ہے اس دور سے حروف صوامت آئے ہیں، اور حروف صوامت ان لفظوں کو کہتے ہیں جن پہ نقطہ نہیں ہے. اب اگلا عمل ہے تالے والا. چھوٹا سا میرے پاس تالا ہے، تالا کوئی سا لے لیں، بڑا لے لیں، چھوٹا لے لیں، اور اس کی چابی آپ نے ہمیشہ نکال کے رکھنی. عمل کے دوران اس کی چابی نہ ہو، اور وہ چابی آپ نے علیحدہ اور تالا علیحدہ، چابی علیحدہ اور تالا علیحدہ. صرف 7 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے. اس پہ کتنی بار؟ طریقہ میں بتا دیتا ہوں، کمال چیز. یہ سورۃ کوثر یہ کس کے لیے ہے؟
जिसकी जिंदगी में ताले लगे हुए हैं ना, ये ताला उसके लिए है। कहता है मेरे रिस्क में ताले, मेरे नसीब में ताले, मेरे बख्त में ताले, मेरी रोजी पे ताले लगे हुए हैं, मेरे रिश्तों में ताले लगे हुए हैं, मेरे मुकद्दर पे ताले लगे हुए हैं, बेटों के लिए ताले लगे हैं, घर में ताले लग गए हैं, फैक्ट्री में ताले लग गए हैं, दुकान पे ताले लग गए हैं, और जिंदगी वीरान हो गई है और बेआबाद हो गई है और परेशान हो गई है और नाकाम हो गई है। ये उन लोगों के लिए है जिनके ताले लगे हुए हैं। ये ताला उन लोगों के लिए है, और उन लोगों के ताले अगर खुलवाने हैं तो इसको खुले ताले के साथ ये अमल करना है। सिर्फ 7 बार आपने ताला इस पे सूरत कौसर पढ़नी है। वो कैसे? सूरत कौसर पढ़े, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका। इसको एक तस्बीह दोहराना है, एक बार सूरत कौसर और एक तस्बीह किसकी? इन्न शानिअका वल अब्तर, इसकी एक तस्बीह इन्न वल, इसकी एक तस्बीह दोहरानी है, और दोहराते हुए सख्त 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 और सख्त तसव्वुर अपने लगे हुए तालों का, वो रोजी पे लगे हैं, वो मुकद्दर पे लगे हैं, वो बख्त पे लगे हैं, वो सजदों पे लगे हैं, वो नेकी पे लगे हैं। नेकी करने को दिल चाहता है, नहीं आ सकता। तस्बीह पढ़ने को दिल चाहता है, नहीं पढ़ सकता। नेकी की तरफ कदम उठने को दिल चाहता है, नहीं उठ पाते। जो ताले लगे हैं ना, उनका तस्वर करके एक बार सूरत कौसर और 100 बार पढ़ना है इन्ना शानिअका वल अब्तर, बस। फिर अगली सूरत 7 दफा सूरत कौसर और 700 बन गई, समझ लें 700 बन गए। 700 तस्बीहें किसकी होंगी? इन्ना शानिअका वल अब्तर। अब आखिर दरूद पाक, तो ये अमल अब आखिर दरूद पाक 7 बार सूरत कौसर, और हर बार सूरत कौसर में एक तस्बीह पढ़नी है इन्ना शानिअका वल अब्तर। और उसके बाद आगे क्या करना है? आगे ये करना है, ताला को खुला रहना, ताले को बंद ना रखना, इसको बंद नहीं करना, खुला रखना। चाबियों को कहीं दफन कर देना, और ताला बंद भी नहीं करना, इसको कहीं दफन कर देना, ऐसी जगह कहीं देखे ना कोई, मिट्टी में कहीं भी दफन कर देना। कब्रिस्तान जरूरी नहीं, कहीं भी ऐसी जगह गहरा दफन कर देना, क्योंकि इसका देखना और करना नहीं, कोई निकाल के इसको बंद ना कर दे। अगर बंद कर दिया तो फिर अमल खुद आप पे पड़ जाएगा। अब सूरत इखलास के अगर आमिल बनना चाहते हैं, सिर्फ 3 दफा सूरत इखलास पढ़नी है। सूरज गिरहन के दौरान कितनी बार? सिर्फ 3 बार। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, बस इस अल्लाहुस समद को 121 बार पढ़ना है। कितनी बार? आगे फिर सूरत पूरी करनी है, 3 बार सिर्फ सूरत इखलास पढ़नी है। अब आखिर दरूद पाक, सूरत इखलास में हर दफा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 7, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने के बाद अल्लाहुस समद को कितनी दफा? उसके बाद सूरत पूरी करें। फिर दूसरी सूरत में भी ऐसे ही, तीसरी में भी ऐसे ही, सिर्फ 3 बार सूरत इखलास। इसकी तासीर इतनी है कि फिर 3 बार अवल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, 1 दफा सूरत फातिहा और 3 दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे, तो वो 3 बार सूरत कुल हुवल्लाह 3 लाख सूरत कुल हुवल्लाह की तासीर बन जाएगी इंशाअल्लाह। 3 लाख सूरत इखलास की तासीर देगी, और 3 लाख सूरत इखलास की ताकत देगी, और 3 लाख सूरत इखलास की कुव्वत देगी। बस मेरे अमल खत्म हो गए। पहला अमल कौन सा बताया? हरूफ सवामित का। दूसरा अमल सूरत कौसर और ताले वाला, और तीसरा, बस ये 3 अमल। अब मुझसे सिर्फ सदके सुन ले जो आपने देने हैं। 40 दिन के अंदर अंदर ये सदका हो सकता है। कितने दिन के अंदर? नकद दे दे, जब भी दे दे। जितने हरूफ है ना इसके 543 हैं। किसके? अदद हैं, अदद
हरूफ समामत की अदद कितने हैं? 543। 543 रुपए या इतने का खाना या इतने की मिठाई या इतने की शीरीनी या इतने की कोई गरीबों में, मिस्कीनों में, जरूरतमंदों में, ऐसे जो सवाल ना करते हो उनको दे दें। अगला है ताले का सदका। ताले का सदका, इसमें इसके मलफूफी अगर मैंने अदद निकाले हैं बाकायदा, इसके अदद निकालने के बाद जो इसके अदद बनते हैं वो सिर्फ 97 बनते हैं, 97। दूसरे लफ्जों में 100 रुपया सदका कर देना। तीसरी चीज क्या? सूरत इखलास। 3 बार सूरत इखलास पढ़नी है और 3 बार सूरत इखलास का सदका सिर्फ 50 रुपए है। बस ये आप कर लें। आप तीनों अमल कर लें, आपकी मर्जी है। तीनों में से कोई एक कर लें, आपकी मर्जी है। तीनों कर लें, लेकिन ध्यान वाले, तवज्जो वाले, दर्द वाले, इखलास वाले, डूब के। चांद गिरहन हो रही है, नजर आना जरूरी नहीं। किसी मुल्क में नजर आता है, कहीं नजर नहीं आता। नजर आना जरूरी नहीं, नजर आना जरूरी नहीं। इसमें जो हमारे चांद गिरहन के अमाल हमारे सोशल मीडिया की पोस्टों पे पड़े हैं, जरूर कर लेना। जो चांद और सूरज गिरहन का ख्याल रखता है, अपनी नस्लों और अपनी जिंदगियों को बचाता है, अपने रिस्क और अपने वक्त को बचाता है। ख्याल करना, ये मेरी तरफ से नहीं, नमाज कसूफ और खसूफ चांद और सूरज गिरहन पे मेरे हजूर ने ऐसे नहीं पढ़ी, इसकी तारीख में हवाले हैं। चांद गिरहन का ये एक लम्हा आ रहा है, ये घड़ी आ रही है। पाकिस्तानी वक्त यही है। जिस मुल्क में, गौर से समझिएगा, पूरी दुनिया इस वक्त मेरी आवाज को सुन रही है, जिस मुल्क में जो वक्त होगा वो अपने मुल्क में अपने वक्त के मुताबिक करेगा। अमल यही होगा। इस दौरान करना क्या है? इस दौरान हमने दुआ में लग जाना है, नफिल में लग जाना है, तस्बीह में लग जाना है। जरूरी नहीं 4 घंटे, आपको जितनी थोड़ी देर में ये अमल पूरे हो जाए। वो ये अमल है कि चांद गिरहन के दौरान आपने एक बोतल में पानी ले लेना है। बोतल में ना पानी लेना है और पानी सामने रख के, बोतल सामने रख के आपने 17 बार पढ़ना है। 17 बार फलक और 17 बार नास। बस ये अमल है। क्योंकि हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे आखिरी वार जो हुआ था, हुजूर को कायल करने का जो आखिरी वार हुआ था, अल्लाह की तरफ से 2 फरिश्ते आए, उन्होंने ये अमल बकायदा बताया, सिखाया, और वही आई सूरत फलक और नास की। अब ये जो फलक और नास जो उतरी थी, आज भी क़यामत तक कोई बंदा ऐसा है जो जिंदगी की बंदिशों, परेशानियों, नाकामियों, मुश्किलात, मसाइल, उलझनों में मुब्तला है। आज भी कोई बंदा, और वह कहता है मेरी जिंदगी तल्ख हो गई है। उससे कहें अभी एक साथ आने वाली है, चांद गिरहन की एक बोतल सामने रखे, उसमें पानी रखे और क्या पढ़े? सूरत फलक और सूरत नास। तवज्जो से अवल आखिर दुरूद शरीफ और हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ, और उस बोतल में दम करे। अच्छा, घर का हर फर्द अपना भी कर सकता है, पूरे घर के भी कर सकते हैं। और यह हदिया अगर पूरे घर की तरफ से करना है तो हदिया पूरे घर की तरफ से होगा। घर के हर फर्द ने करना है तो हर फर्द अपना हदिया दे दे। इसी तरह ये जो फलक और नास का अमल है, ये भी घर का हर फर्द कर सकता है, और चाहे तो पूरे घर में से एक फर्द भी कर सकता है। 17 दफा फलक और 17 दफा सूरत नास। उसका ढकना खुला रखें और तवज्जो से ये उस पर दम करते हैं। क्या कर दे? और इसका जो हदिया है वो भी पानी है। पानी का हदिया भी पानी है। पानी का हदिया भी पानी है। किसी करीबी मस्जिद पानी का बिल अदा कर दें, किसी जगह नलका लगवा दें, सबील लगवा दें, किसी सफेद पोश के घर के पानी का बिल दे दें, या लोगों को ठंडा मीठा पानी पिला दें। इसका हदिया भी क्या है? पानी है। और ये बीमारियों के लिए, तंगदस्तियों के लिए, उलझनों के लिए, झगड़ों के लिए, नाइत्तफाकों के लिए आने वाली मुसीबत, इस पानी को आटा गूंदने में, चाय बनाने में, पीने में, करने में
دیواروں پہ نہ پھینکیں، گھر میں پاؤں نہ آئے، باقی ہر جگہ اس کو پینے کھانے پکانے میں اس پانی کو بڑھاتے جائیں، استعمال کریں، اور کوئی دم والا پانی پڑا ہے تو اس میں ملا لیں، ایک ہی ہو جائے۔ آخری عمل سنیں، چھوٹا سا عمل ہے، آپ نے حزب البحر جو ہے وہ پڑھی، یہ حزب البحر کے اسماء حسنہ ہیں، یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، یا اللہ یا علی یا عظیم۔ آیت الکرسی کی آخری آیت ہے، یہ اس کے اسماء حسنہ، یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، یہ حزب البحر کے آخری الفاظ ہیں۔ بس آپ کیا کریں گے اس دوران میں؟ اولا کے 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے نا آپ نے صرف 140 مرتبہ گڑ گڑا کے پڑھنا۔ یہ بار بار بات لفظ کر رہا ہوں، گڑ گڑا کے بھکاری بن کے محتاج بن کے، یہ لفظ بار بار عرض کر رہا ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں۔ بس اپنے مقاصد مسائل کا تصور کر کے، اور اس کا ہدیہ 7 عدد جنس ہے، مثلا گندم، جوار، مکئی، باجرہ، جو، چاول، مونگ وغیرہ، یہ 7 عدد حسب توفیق آپ پرندوں کو قبرستان میں کسی صاف جگہ پہ کہیں ڈال دیں، حسب